student, welcome to biology class. Now students, we will continue our previous lecture of discussing important 2 marks question. Okay, last lecture mein we have discussed few questions. Now let's start with the rest of the questions. What are the different ways in which glucose is oxidized to produce energy in various organisms? Now there are broadly there are 4 ways. Okay, one is your aerobic, that is your complete breakdown. Then anaerobic, that is incomplete breakdown. Now uh, incomplete breakdown way there are 2 types. Okay, the first is your that the type of respiration which occur in lower animals, in which ethanol is produced, carbon dioxide and energy. And the second type of anaerobic respiration that occur in muscles, in which lactic acid is produced and energy is produced. Okay, so these are the two main types of breakdown main types of, you can say, respirations in which glucose is oxidized to provide energy. So this is the equation. You are supposed to write the equation also. So this is very important question and it is often asked every alternate year. Okay, now next question is, which mechanism plays an important role in transport of water during daytime and night? So daytime में transpirational pull is there, which help in transporting the water or and nutrients. And then at night, water deficient of daytime and afterwards root pressure. So at night your this diffusion process and root pressure is responsible for the transport of substances. Next is, what is excretion? How do unicellular animals remove their waste? Now excretion is the biological process in which the harmful substances, harmful metabolic waste are removed from the body. Now in case of unicellular organism, excretion, it occurs through simple diffusion from the body surface. Now next is, what is internal energy reserve in plant? How the internal energy is reserved in plant? That is in the form of starch. Okay, because ultimately food is the one which provide energy. तो starch के form में reserve रहती है, that is a complex carbohydrate. Do the animals have the same energy reserve? Animals do not have the same energy reserve, because instead of starch, animals they possess glycogen and fat. Okay, animals में glycogen और fat होता है. Now next question, explain the significance of peristaltic movement that occurs all along the gut during digestion. Okay, now पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट, ओके, जिसकी वजह से कोई भी जो सब्सटेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ड्यू टू द वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स एक्सपेंशन. सो उसी को हम पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट कहते हैं. So peristaltic movement or peristalsis is the waves of alternate contraction and expansion that passes through the gut from esophagus to large intestine. Okay, esophagus से start होता है and it continues to the large intestine. It moves the food forward in a regulated manner along the digestive tract for processing in each part properly. Now next question, major amount of water is selectively reabsorbed by tubular part of nephron. What are the factors on which the amount of water reabsorbed depend? Now the amount of excess water present and amount of dissolved salt to be excreted. Now ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है, बिकॉज आप इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, दैट अकर्स इन थ्री स्टेप्स. पैरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा था रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन वाज द सिक्रीशन. सो जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इट इज़ बेसिकली इट पार्टिसिपेट्स इन द रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें भी आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है.
और ये रीएब्जॉर्प्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर प्रेजेंट है, ओके, उस जिस समय ये रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। एंड सेकेंड थिंग कि कितना जो डिजॉल्व वेस्ट है वो एक्सक्रीट होना है, ओके। सो इन दैट इन ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा वाटर जो है कितना अमाउंट रीएब्जॉर्ब होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। सो एक तो आपका हो गया सलाइवरी अमाइलेज, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स जो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। एंड द नेक्स्ट इज योर पैनक्रियाज विच सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। So these are the secretions and these are the glands, okay। now आगे मूव करते हैं। Give reasons for the following. Why is diffusion not sufficient to meet the requirement of all cells in multicellular organism? Now, as we all know, multicellular organism, they have a complex body design. Okay, and the cells, the living cells जो होते हैं multicellular में, they are in not direct contact with environment. Okay, वो body के अंदर होते हैं। And diffusion is a slow process. ओके जो कि लोअर एनिमल्स में तो ऑपरेट करता है, ओके। एंड इट बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सो दैट्स वाई द multicellular organism they need some special type of system so that the oxygen requirement is fulfilled in all the cells। तो इसीलिए इसमें जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ओके। दैट इज़ वेल डेवलप्ड इन मैमल्स or in higher group of animals, but for lower animals they have a since they have a simple body design, so diffusion is sufficient to fulfill their requirements। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। सो डेजर्ट प्लांट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग नाइट, ओके। नाइट ये जो है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये एक तरह का जो है प्लांट्स होते हैं जिनमें जो है डे टाइम में जो है स्टोमेटा बंद रहते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है, डेजर्ट्स में ये प्लांट्स पाए जाते हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें जो है रात में एब्जॉर्ब होती है क्योंकि इनमें स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी, लीफ एनाटमी, इनमें स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी पाई जाती है जिसको हम क्रैंस एनाटमी बोलते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ओके, क्लास 11th में ही पढ़ोगे। और ये जो आपकी ये जो है इसमें स्टोमेटा जो हैं रात में ओपन होते हैं, और ये जो है फिक्स करता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका फिक्सेशन होता है मैलिक एसिड, ओके। इट मैलिक एसिड के फॉर्म में फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हम ये कह सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट मैलिक एसिड बनता है, और ये मैलिक एसिड क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम दिस मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेम सेल्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, और जो है केल्विन साइकिल जो है ऑपरेट करती है और फूड बन जाता है, ओके, क्योंकि केल्विन साइकिल ही फूड बनाती है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात में एब्जॉर्ब होती है क्योंकि रात में स्टोमेटा ओपन होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, मैलिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ये स्टोर रहता है। जैसे ही दिन होता है ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ओके, आपके ऑर्डिनरी सेल्स में, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है जिससे कि केल्विन साइकिल ऑपरेट करती है और फूड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस इन प्लांट। ट्रांसलोकेशन इज सिंपली द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड इन सॉल्यूशन फॉर्म इनसाइड फ्लोएम फ्रॉम द रीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस जहाँ पे बन रहा है टू द रीजन ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, जहाँ पे यूज़ होना है। सो ट्रांसलोकेशन इज सिंपली द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस का मतलब हुआ जहाँ स्टोर्ड है, और अदर मीन्स जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन प्लांट, food molecules or nutrients they enter phloem actively, develop a osmotic pressure
and pass to the area of utilization in a mass flow where active withdrawal occur. So this all process needs एनर्जी का कंजम्पशन होता है क्योंकि एक्टिव यहाँ पे एक्टिवली जो है ये जो है इसका जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है. सो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का. State two differences between arteries and veins. Now there are many differences. You can write any two. Like direction of flow की अगर हम बात करें, okay, it carries blood from heart to an organ. Then veins, they bring blood from organs towards the heart. ब्लड जो है फ्लो इज़ रैपिड इन आर्टरीज, इन वेन्स इट इज़ स्लो. ब्लड जो है फ्लो विद जर्क, इसमें ब्लड स्मूथ फ्लो करता है. आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स. ओके, आर्टरीज जो हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं. सो मैनी differences are there. You can write any. So this is all student. Thank you everyone.